Hello viewers, thank you for clicking this video. I am Saddam and you are watching Saddam ki classes. So today we are going to discuss a very important English grammar topic, use of will have to. So in this video we are going to discuss how to use will have to and how to make sentences will help of will have to. So we are going to discuss each and everything about will have to. So watch this video till end, and if you have any query and doubt, so let me know and comments me. I will clear your all doubt. So let's begin. How to use will have to. So will have to means showing we are talking about in future, because will mostly use in most will you will mostly use in future tense. So in will have to we always use will have to in future tense. So let's begin how to use will have to and how to make sentences. So here is the some important key. What is will क्या है, and then definition परिभाषा. Will is used to look in the screen. Will is used to express future action, promise, discussions and willings. It means भविष्य की क्रियाएं, वादे, इच्छा और निर्णय व्यक्त करने के लिए will का उपयोग होता है. And how to make sentences, what is the structure and what is the formula making sentence of with the help of will have to. Then here is subject plus will plus v1. It means subject means कर्ता, then will और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कर्ता प्लस विल प्लस क्रिया का मूल रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हम सबसे पहले कर्ता लेंगे. कर्ता मीन्स ही सी इट दे, ही सी इट वी यू दे ऑल इज सब्जेक्ट. देन हम विल ऐड करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो I hope you understood how to make sentences with the help of will have to. And here is the use. How to use will: future prediction, promise, spontaneous decision, offers and requests. So where to use we will. So it means we use will in future prediction, any promise, discussion and request. So I hope you understood what is the will and how to use and what is the condition of use of will have and will have to. So let's go our next slide, and we are going to discuss and we are making some important sentences. So here is will, वाक्य will. So now we are going to discuss and we are making sentence the help of will. How to make sentence? So here is the example. मैं कल स्कूल जाऊंगा. I will go to school tomorrow. वह एक डॉक्टर बनेगा. He will become a doctor. हम मैच जीतेंगे. हम मैच जीतेंगे. We will win the match. मैं तुम्हारी मदद करूंगा. I will help you. वह कल नहीं आएगी. She will not come tomorrow. if वह कल नहीं आएगा तो that time we can use he will not come tomorrow. So we all are know she use in female and he use for male. So I hope you understood, and all dot should be clear. So now we are going to next slide. Next slide is some more practice sentences. So will,
क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। हेयर इज द क्वेश्चन वाले सेंटेंस कि हम किसी से विल का उपयोग करके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो हेयर इज द यूज एंड हाउ, हेयर इज द स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंस with will with help of will and how to ask question in future with the help of will। तो here is the solution। क्या तुम मेरे साथ आओगे, will you come with me। वे एक नई कार खरीदेंगे, they will buy a new car। मैं यह काम जरूर करूँगा, I will definitely do this work। बारिश होगी, it will rain। वह अपना वादा पूरा करेगा, he will keep his promise। So I hope you understood and repeat after me so that these sentences fix in your mind, when will you try to speak these words and these sentences come automatically in your mouth। So try repeat after me in loudly। This is called shadowing practice। हैव टू एंड हेयर इज द हैव टू क्या है, फिर सेम थिंग्स। हैव टू इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और कॉम्पुलेशन, समथिंग यू मस्ट डू। इट मीन्स हैव टू ये हमें दर्शाता है कि हम किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं, या हमें किसी को कोई प्रॉमिस करना है, या कोई काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम हैव टू या विल हैव टू का उपयोग करते हैं। एंड हेयर इज़ द हैव टू, ज़रूरी काम या बाध्यता दिखाने के लिए हैव टू का उपयोग होता है। एंड सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड here is the use of have to, obligation and necessity, rule and regulation, daily routine and external compulsion। So I hope you understood where to use will have to and where to use have to। Now next, some more sentences with have to। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। हमें नियम का पालन करना होगा, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। उसे दवाई लेनी है, सी हैज़ टू टेक मेडिसिन। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। सो you think all these sentences show our helplessness। how मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, इट मीन्स आई डोंट वांट टू गो स्कूल डेली, बट आई हैव सम ऑब्लिगेशन, सम नेसेसिटी एंड इट इज़ बाइंडिंग फॉर मी, दैट टाइम आई हैव टू गो स्कूल एवरी डे। इसलिए मुझे स्कूल रोज जाना पड़ता है। तो इट मीन्स इज सो। विल हैव का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पर कोई काम या कोई वर्क, कोई कार्य कंपल्सरी हो, ऑब्लिगेशन हो या बाइंडिंग हो, वहाँ पे हम हैव टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। एंड फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, एंड पास्ट में हैड टू का प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। क्या तुम्हें ऑफिस जाना है, डू यू हैव टू गो टू द ऑफिस। बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू स्टडी। मुझे अपना काम खुद करना होगा, आई हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ। उन्हें समय पर पहुंचना होगा, दे हैव टू रीच ऑन टाइम। उसे परीक्षा देनी है, डज शी हैव टू टेक द एग्जाम। रिपीट ऑल सेंटेंसेस आफ्टर मी एंड हियर इज सम इम्पोर्टेंट की। वेल, फ्यूचर एक्शन भविष्य की क्रियाएं, प्रॉमिस वादे, स्पॉन्टेनियस डिसीजन तत्काल निर्णय, नो एक्सटर्नल फोर्स कोई दबाव नहीं, अ विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति। यानी हम विल का उपयोग कहाँ करते हैं, दिस इज़ द वेरी मार्क दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट
कि हम विल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, भविष्य की क्रियाएं के लिए। जैसे हमें किसी को प्रॉमिस करना है, दैट टाइम वी विल यूज, वी कैन मेक सेंटेंस द हेल्प ऑफ विल। किसी से वादा करना, प्रॉमिस, कोई बिल्कुल तत्काल अर्जेंट निर्णय लेना है, डिसीजन लेना, दैट टाइम वी कैन यूज विल। एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें कोई दबाव नहीं होता है, विलिंगनेस, और ये हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। एंड हेयर इज हैव टू। हैव टू का हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कोई हमारा दायित्व हो या कर्तव्य हो, वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं। रूल एंड रेगुलेशन, नियम और कानून बनाने के लिए। नेसेसिटी यानी ज़रूरत चीज़ों के लिए। एंड मस्ट डू, नो चॉइस, करना ही है। इसमें यानी हैव टू का उपयोग हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हम पे कोई चॉइस नहीं होता, यानी हर हाल में मुझे वो काम करना है। दैट टाइम वी विल मेक सेंटेंस द हेल्प ऑफ हैव टू एंड व्हेन वी विल trying to some in future, that time we will make sentence with the help of will. So I hope you understood the difference between will and have to. So I hope you understood each and everything. If you have any doubt, let me know. I will clear your all doubt. So now we are going to next slide. Here is the quick revision, quick review formula and quick review. ये इस स्लाइड में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी तक पूरे वीडियो में क्या पढ़ा था। हेयर इज द क्विक रिवीजन। विल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगी। एंड हैव टू का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज़ टू वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हैज़ टू स्टडी, वो पढ़ती है। टिप, विल के साथ हमेशा बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बेस वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। विल नकारात्मक बनाने के लिए विल नॉट या वॉन्ट, नेगेटिव ऑफ विल यानी when we will want to make sentence in negative form, that time we can use will not, want and negative. it means हम नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए will not या want का उपयोग करते हैं। and here is has to तब आता है जब सब्जेक्ट ही सी इट हो। यूज हैज यानी हैज़ टू का उपयोग हम जहाँ करते हैं जब करता है हमारे पास ही सी इट। एंड हैव टू का यूज करेंगे सेम, यू दे वी। एंड इन नेगेटिव फॉर्म में हम क्या ये यूज़ करेंगे, हैव टू, डोंट हैव। हैव टू की जगह हम डोंट हैव यूज़ करेंगे, या डू नॉट हैव भी यूज़ कर सकते हैं। So I hope you understood each and everything. If you any doubt, so pin comments me, I will complete your all doubt. So thank you for watching. And if you like this video, share your all friends and relatives so that improve your English. And try to repeat all sentences after me, and try to repeat all sentences in the front of the mirror, so that your practice will improve the next level. So thank you so much.